Good morning, guys. Today is 14th June 2026, Sunday. Today we are. I am leaving Punjab. I'm going to Manali. So from Chandigarh, Sambhav is joining us. So another 146 kilometers to reach Anandpur Sahib, actually this the location. So we are leaving now. Morning time is 4:50 a.m. This is somewhere after Amritsar yesterday, after we finished all our this thing about our Amritsar, what we wanted to go, that is Wagah border, Jallianwala Bagh, and then Golden Temple, all that visit. We were tired, so we took a rest in this hotel here. This is the hotel. Good stay. We slept around 12 o'clock, got up early, and now we are going to meet Sambhav, and then today night stay will be at Jispa, right? Okay, that's it, guys. Bike is ready, money is ready. We are going to start in a bit. Thank you, guys. Catch you later. We are climbing now from Punjab, getting on to Manali, and Jispa is going to be our stay. So you can see the climb and the hilly area, beautiful misty climate and weather, lot of vegetation, greenery around. So hopefully there will not be too many bad roads. Pray to God that I am able to do it safely. Help me, God. Thank you. So it's going to be Ghat section now. Oh man, now river flowing down. Wow, valley. Superb. Dry it is. Between the valley. Oh, it's going to be a climb now. Okay. The tunnel here, the tunnel number 6 towards Manali, Mandi then Kulu Manali. Lovely. Long room. Out of the tunnel now. What are you, man? Another tunnel. Oh, so many tunnel. 6th, 7th tunnel. Oh, approaching another tunnel. Tunnel number 7. 6 and 7 are close by. Wow. Wow, lighted. Continuous tunnel. Tunnel over. Beautiful. Oh, look at all mountain valley. Wow, lovely. Construction going on.
First glimpse of snow on the peaks, mountains. You can see on the mountain peaks snow. First glimpse of snow near Manali. First glimpse of snow on in Manali. Oh man, see there. Mountain peaks, snow peaks there. Lovely. Lovely view. Valley here. Another 15 kilometers or 18 kilometers. Oh, you can see full hairy sheep. You are also Darcha Sunroof Camp. Beautiful valley. Kullu is over now. Next is Manali. Snow-capped mountains. These are the valleys between the mountain ranges. Snow-capped mountains on top. Manali sweets. Wow, lovely. Good morning. Today is 15th June 2026. So we are in Jispa. There's a tented stay here called Birug Camp Jispa. You can see the boat there. So now we are going to Shinkula Pass. Oh, beautiful, man. See the mountain glacier. So beautiful. Totally. Between the ice-capped mountains, riding between the ice-capped mountains, off-roading. Off-roading now here to this camp. It is not easy. Hayabusa 3rd generation and a V-Storm been taken on a flatbed. So good morning, guys. Today is 17th June 2026. So we had to acclimatize for 2 days. We stayed in Jispa. Now we came back to Sishu and stayed here because tent accommodation, the hot water and all was not available actually. So yesterday to Mani's condition was little bad, mine also, because of the oxygen levels in Shinkula Pass. So we plan to stay back today, stay back yesterday, and today now we are checking out. And going from this hotel, we stayed the Blue War Kunsil. This is the place where we stayed, and the bike is loaded now. We just have to refuel now, and en route from there is a government hospital to get a can of oxygen cylinder and some Dimox tablet. So the distance is showing
to Leh Ladakh, around 389 kilometers, 9 hours 33 minutes. Now it is the time is 10:53. Arrival it says 8:26. Maybe little late also, depending upon how we ride and how we cover the distance. So my bike is ready. Manish is also ready. Ruben is ready on his 1300 GSA, fully loaded bike. You can see how it looks. This is the red color option, BMW badging and all that. This is an MP registration, Madhya Pradesh registration. So now it's we need to just start. We're a little late, nevertheless we'll go slowly, we'll take it slow. So that's it guys for now. Catch you later en route. If I have some very good glimpses, you can see the snow-clad mountains on top all around here on my left side. Then on right side you can see snow-clad mountains. Beautiful location. The stay was fine. We stayed in this top room in first floor. Bike parking also was good, and now we are leaving. That's it guys. Catch you in a bit. When we have something to record, I will record and showcase. Thanks a lot. Bye. That's what let's see. So this is also this bridge is supposed to be the longest bridge in Darcha. Where there it was written, let me see. Yes, Darcha bridge, longest bridge. Beautiful. Wow, what a look. Yeah, beautiful Darcha bridge, longest bridge. So you can read here. You have just visited Darcha bridge, longest bridge of Himachal Pradesh. We have visited Darcha bridge, longest bridge of Himachal Pradesh, Modern Routes Association. Yes. Lovely mountain range ahead of you. Snow on the plains there you can see, and such an open beautiful stretch. Wow, lovely. It's kind of a lake formation there, but that is also a kind of become a ice sheet, snow crust actually. You can see a white sheet of cover in the lake. God, nature is so beautiful, lovely. So my console, I don't know with the tank pack, but much you can see. Wow, what a beauty, man. See the ice formation on the lake bed. Beautiful view. Sun is shining and the ice is glowing basically. Oh, lovely. This is nature at its best. इतना सुंदर और मनोहर रमणीय दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ बारालाचा के बाद हम लेक की तरफ जा रहे हैं। My goodness, beauty man, see the way it is. Snow-clad mountains और बीच में लेक में भी आइस है। इतना मनोहर दृश्य आपको इंडिया में ही मिलेगा। इंडिया में आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको मरुस्थल मिलेगा, आपको समुद्र मिलेगा,
बीच मिलेगा समुद्र के तट पे, फिर पहाड़ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। सारा जो दुनिया में जो भी मौसम या वातावरण कुदरत ने बनाई है वो हमें सारा महसूस करने को सिर्फ हमारा महान भारत में ही मिलेगा। नहीं तो हर दो अलग राज्यों में जाके एक एक चीज़ की को हम महसूस कर सकते हैं, बट इंडिया में सारी दुनिया, भारत जैसे सारी दुनिया को समेटे हुए है। इतना सुकून मिलता है इन वादियों में चलाने के लिए। ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में ही आ गए, किसी काल्पनिक दुनिया में आ गए, ऐसा महसूस होता है। बहुत ही मनोहर, बहुत ही रमणीय और आकर्षित करने वाला वातावरण और दृश्य आपको मिलेगा। आप लेक की तरह अपना बाइक चला के जाओगे तो इतना सुंदर और मनोहर आपके दिल और दिमाग को एक सुकून पहुंचाएगा। आगे देखिए, पर्वत शिखर पर बर्फ के टीले धूप में चमचमाती हुई, और मेरे ओडोमीटर में देखिए टेम्परेचर अभी तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिखा रहा है 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने सारे गियर्स और ग्लव्स वगैरह सब पहन के रखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चला पा रहा हूँ। ओनली थिंग रोड अच्छा होना चाहिए। अगर रास्ता अच्छा है तो आराम से चला सकते हैं। देखिए ये ग्रेट कैनियन जैसा फीलिंग हो रहा है चलाने में। पहाड़ के चट्टानों को काटते हुए, चीरते हुए जा रहे हैं हम, ऐसा महसूस होता है। ये अद्भुत दृश्य आपके मन को सहला देगी। देखिए पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता काट के निकाला गया है, और इतना अद्भुत। और देखिए लाल चुंगला सरचू 21 पूरा डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड है यहाँ पे ऊपर। इतना सुंदर बॉर्डर रोड्स एसोसिएशन का कमाल देखिए आप। देखो वहाँ पे एक ट्रक टर्न ले रहा है, तो बेहतर इसी में है कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, कोई अनहोनी ना घटे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ रुक जाऊँ तब तक वो ट्रक आराम से निकल ना जाए, वरना को यू टर्न हेयरपिन बेंड पे तकलीफ़ हो सकती है। वो कार वाला भी रुक गया है वहाँ पे, तो अभी वो धीरे धीरे से पीछे आ रहा है। मैं अभी बाइक को अभी स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। बाइक स्टार्ट कर लिया हूँ मैं। फिर से कार वाला और ट्रक वाले के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण बाइक को स्टार्ट होने में भी तकलीफ़ हो रहा है। तो
अभी सारा रास्ता क्लियर हो गया है। अब हम आराम से हेयर पिन बेंड पे टर्न लेके जाएंगे, धीरे से और प्यार से, क्योंकि हर जगह सारी तरफ खाई है। थोड़ा भी गलती किया तो सीधा खाई में चले जाएंगे, तो वो जरा मृत्यु को अवसर देने के जैसा हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी इन ऐसे रोडों पे बाइक चलाते समय। अभी भी ट्रक आ रहा है, तो मुझे कोशिश करना है कि मैं अपने लेन में ही बना रहूं और आराम से धीरे से निकल जाऊं, वरना टक्कर होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी अगेन ये हेयर पिन डायल है, मैं पहली गियर में डाल रहा हूँ, अपने लेन को रखते हुए धीरे से गाड़ी को मोड़ते हुए निकाल ले रहा हूँ, प्यार से और आराम से। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी पहुँच के कोई खिताब हासिल नहीं करना है। हमें सिर्फ आराम से सारे पर्यावरण, वातावरण सब की आनंद लेते हुए मस्त मौला होके बाइक चलाते हुए पहुंचना है हमें लेह की तरफ। ठीक है, अभी कुछ 275 किलोमीटर्स दिखा रहा है। ठीक है, आराम से निकल जाएंगे हम लोग, पर रिस्क तो बिल्कुल लेना नहीं है, बिकॉज थोड़ा भी अगर हमने चूक की तो वो बहुत घातक हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात बरतते हुए बाइक चलानी पड़ेगी। चारी तरफ तो आप अपने राइट साइड में देखिए, पूरा बड़ा खाई है, तो इसलिए हमें उसमें से पानी भी बह रहा है। तो सोच समझ के हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा धीरे से, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बाइकर्स वगैरह प्यार से आराम से चला के जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। आगे शायद हमें अच्छा सीधा रोड मिल जाए तो हम गाड़ी और थोड़ा तेज़ भगा सकते हैं, तो इस ट्विस्टीज में धीरे जाना ही मुनासिब होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। देखिए इतना प्यारा दृश्य है आपके सामने। बाइक चलाने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है, 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडक में आराम से प्यार से चला रहे। धूप भी है, बारिश नहीं है, इसलिए ओनली थिंग ये पूरा देखिए, वाटरफॉल देखिए, वो साइड से स्नो है, वाटरफॉल हो रहा है साइड में, सब आपको मिल रहेगा, सारा व्यू दिखेगा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बीच का रोड में हम चला रहे हैं, और बीच में पुल भी बना हुआ है। सो पुल को अरे सारे बॉर्डर रोड एसोसिएशन ने इतना कमाल किया है, रास्ता इतना प्यारा बनाया है कि हम आराम से अपनी बाइक या गाड़ियों में यहाँ पे आ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, रास्ता को थोड़ा काफ़ी ख़राब था, पहले जाने वालों को बहुत तकलीफ़ होता था, बट अभी तो ज़्यादातर रास्ता अब बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। करीबन बीच में थोड़ा सा पैच तो ख़राब हो सकता है, वो हम फिर भी चला सकते हैं। ऐसा है कि बहुत दुर्गम है, चलाना बहुत ही मुश्किल हो, सिर्फ चट्टानों को काटते हुए कैसे रोड बना है। अभी यहाँ पे पुल भी बनाया हुआ है, देखिए चारों तरफ
अब वहाँ अगला बोर्ड देखिए, वहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा ले, कितना दिखा रहा है 269 किलोमीटर्स, तांगलांगला 161 किलोमीटर, पैंग 95, लाचुंगला 72, टू ब्यूटीफुल। तो हमें करीबन 272 किलोमीटर्स कवर करने हैं हमारे होटल तक, जहाँ हम ले में 3 दिन रह के एक्लेमेटाइज वगैरह हो के, थोड़ा लगेज वगैरह होटल में उतार के, फिर हम उमलिंगला की तरफ प्रस्थान करेंगे। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, जैसे हमको शिंकुला टॉप पे सांस लेने में दिक्कत हुई और अनजान लोगों ने सहायता की, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और कर्पूर दिया सूंघने को, उसके बाद जाके मेरी जान में जान आई। वैसे मनीष को थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो उसको भी थोड़ा पानी वानी पिलाया, थोड़ा स्टेबल कराया और इमीडिएटली तो तुरंत ही रूबन ने उसको जिस्पा की तरफ जल्दी से लेके गया अपने BMW 1300 GSA पर। तो फिर हम एक और दिन वहाँ रहे, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा विश्राम किया, बॉडी को पूरा थोड़ा सेट वेट, मतलब थकान दूर किया। और उसके बाद हम लोग आज निकले, तो शिशु में रहे और उसके बाद वहाँ से सुबह चेकआउट करने के बाद हम लोग किलोंग पे 95 ऑक्टेन काफ़ी ये मिला, पेट्रोल मिला, वो भी फुल टैंक करके फिर निकले, क्योंकि इस रास्ते में कहीं आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट ले तक। तो उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारा पूरा 30 लीटर का पेट्रोल टैंक है, इसलिए आराम से कर लेगा वो। सो यही सोच में हम निकले हैं, तो प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए भगवान की कृपा से। तो आज मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ ब्लॉग में, क्योंकि इंस्टाग्राम में करीबन 1.5 मिलियन तक अभी व्यूज़ आ गए थोड़े रील्स पे वगैरह। तो काफ़ी लोग नॉर्थ से भी जुड़े हुए हैं। देखो लेक देखिए, इतना ब्यूटीफुल लेक है, लेफ्ट में क्लियर पानी, साफ़ सुथरा पानी। तो काफ़ी लोग जुड़े हैं जो पूछ रहे थे हिंदी में भी आप थोड़ा सा ब्लॉग किया करो ताकि हमें भी समझ आए, इसलिए मैंने सोचा ठीक है इंग्लिश के साथ हिंदी में भी, हिंदी ऑडियंस को भी थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए थोड़ा अभी मैं हिंदी में बोल रहा था। बस इतना ही, यही है। रोड पूरा ब्यूटीफुल, इतना सुंदर सा दिख रहा है आपको सामने। काफ़ी अभी ऐसा ही रहेगा, इतना ही मनोहर और सुंदर रहेगा। तो ज़्यादा अभी इसे एक ही चीज़ को बार बार रिकॉर्ड करके दिखाना भी कुछ खास नहीं होगा। सारा ऑलमोस्ट इतना ही मनोहर और रमणीय है, तो कितना देर रिकॉर्ड किया जाए। तो इसलिए मैं अभी तत्काल बंद करता हूँ, और अगला कुछ कोई अच्छा सीन वगैरह आए तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके आपसे जुड़ता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ क्या? भेड़िया भेड़िया भेड़िया। हाँ दिख रहा है भेड़िया। थैंक यू। आप यहाँ खड़े थे, नीचे होके गया हो। हाँ हाँ, ओ वुल्फ। You said there was a wolf.
Differing is 38, Upsi 120, Leh 169. This is Moreno Plains or something. Beautiful. Differing. You can see this is Leh Ladakh. Leh Ladakh now. I'm going to Khardungla. So I just went to put the fuel. 95 octane was available. So at 3 kilometers from the hotel. So this is now actually you can see Leh Gate here. This is the beautiful Leh Gate entrance of Leh Gate. This is Leh Gate. Need to go right, I think. Where do I go? That side. So I'll go like this. To go right. So really good. Keep it slow. Oh, from here I have to take a right. If I had gone that side, it would have been difficult for me. So got to be a little careful. Turning from there would be difficult. So now need to उस तरफ नहीं जा सकते। मैडम थोड़ा गलती हो रही छोड़ दोगे? थोड़ा गलती हो गया। भारी गाड़ी है ना, मुश्किल है, थोड़ा निकल जाऊं। कनेक्ट होता है। ठीक है, एक मिनट उसको रोक दो थोड़ा। अरे भाई made a mistake. Okay, go. ठीक है, go like this only now. Leh Society. Okay, anyway, it's connecting to the road only, so no problem. Too much of traffic here. I think my inner liners which I'm the thermals which I'm wearing is keeping me quite warm. Okay, showing this side only. So let me go here. You connect like that instead of going to that signal. Yeah. So shouldn't be a problem.
Catch you in a bit.